ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 12 ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10th ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਡੇ 10th ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 8 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 3rd ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1969 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ 1962 ਟੂ 1967। 1962 ਤੋਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ ਅ ਨਿਊ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ, ਹੈਲਥ ਅਡਵਾਂਟ ਐਜ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਲਵੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ UP ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ BCCI ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰ 2021 ਇਵੈਂਟਸ। 2021 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰੋਫੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ BCCI ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼। ISRO will launch Amazonia 1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ISRO Amazonia 1 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ 28 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ PSLV C71 ਦੇ ਨਾਲ C51 ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ PSLV C51। 53rd ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ PSLV ਦਾ। 20 ਅਦਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਨੰਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਨਿਊ ਸਪੇਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ISRO ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ISRO ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ K ਸਿਵਾਨ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਂਡ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੈਂਗਲੋਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ACI ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਾਉਂਸਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਵੌਇਸ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਔਰ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੈਂਗਲੋਰ ਨੂੰ ACI ਦੁਆਰਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਕੋਲ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਕੋਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਸਮਿਤਾ ਲੈਂਕਾ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਟਕ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ। ਫੋਰੈਸਟ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਕਟਕ ਉੜੀਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ
एनफोर्समेंट अवार्ड किन्ना ने जीते? सस्मिता लेंका द्वारा। गुलाम नबी आज़ाद राज्य सभा मैंबर ने जम्मू कश्मीर तो रिटायर हो रहे ने। सीनियर कांग्रेस लीडर ने और 15 फरवरी ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ along with नाज़ीर अहमद, शमशेर सिंह एंड मीर मोहम्मद। ठीक है जी, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद कित्थों राज्य सभा मैंबर सीगे, ठीक है, या फिर गुलाम नबी आज़ाद किहड़ी पार्टी तो बिलोंग करते सी जो कि राज्य सभा तो रिटायर हुए ने। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते। नेक्स्ट है एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर द्वारा अनाउंस किया गया क्लीन एयर प्रोग्राम अक्रॉस 122 सिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। साउथ कोरिया ने टॉप किया है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ कंट्री ने टॉप किया है? साउथ कोरिया ने टॉप किया है। सैकेंड प्लेस ते सिंगापुर रही है। इंडिया इस 50th नंबर पर रहा और लास्ट ईयर यानी कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया 54th नंबर पर सी। ठीक है, 2021 की रैंकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया 50वें नंबर पर है। 2020 की रैंकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया 94वें नंबर पर सी। USA अनाउंस्ड टू रीजॉइन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनेस्को बेसिकली जो USA है, अमेरिका है या जो बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चेंजिज किए जा रहे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए सी, उन्होंने रीबैक किया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रीजॉइन करेगी USA। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी। जेनेवा ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है। 47 मैंबर कंट्रीज़ ने और नज़हत शामीन हैड ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद अफगानिस्तान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शहतूत डैम या ललनदार डैम कहा जा रहा है। कौन बनाएगा? इंडिया बनाएगा काबुल रिवर के उत्ते। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन इन्हों द्वारा नॉलेज मिशन की शुरुआत की गई है। नॉलेज मिशन केरला चीफ मिनिस्टर नॉलेज मिशन लॉन्च किया है किस दे लिए? टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट टू नॉलेज इकोनॉमी। असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च एट दिंजन डिब्रूगढ़। इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च की शुरुआत की गई दिंजन डिब्रूगढ़ के विच फाउंडेशन स्टोन रखे गए और साहित्य मनीषी उपभवन यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क्स डिब्रूगढ़ और कैरेडियो डिस्ट्रिक्ट के विच फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट कोविड वॉरियर मेमोरियल लगाएगी उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर दे विच फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सैक्रीफाइसिस एंड सर्विसेज ऑफ कोविड वॉरियर्स। ठीक है, चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के वाल। कंटेंट सारा पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। स्टैटिक पोर्शन के विच हॉकी के कप्स आपाने क्रिकेट के कप, क्रिकेट के इवेंट्स, फुटबॉल के कप, फुटबॉल के इवेंट्स, हॉकी के कप और हॉकी के इवेंट्स डिस्कस कर लेने। हॉकी के कप्स की गल करते हैं तो आगा खान कप, बेगम रसूल ट्रॉफी वूमेंस के लिए खेडी जाती है। बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियन ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी दे नाल, वेलिंगटन कप हॉकी दे नाल, नेहरू ट्रॉफी हॉकी दे विच और ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी दे नाल रिलेटेड है। ठीक है जी, इवेंट्स जिन्ने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होंदे ने डायरैक्टली पूछे जाते हैं वन लाइनर दे विच, याद रखांगे। चलते हैं नैक्सट पोर्शन यानी कि अज की न्यूज़ दे वाल। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ वूमेन एंड गर्ल्स इन साइंसिस। किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वूमेन एंड गर्ल्स इन साइंसिस ऑब्जर्व किया गया? कल दे दिन
11 फैबररी वाले दिन इसनूं ऑबजर्व किया गया। ठीक है जी, किस दिन ऑबजर्व किया गया? 11 फैबररी नूं ऑबजर्व किया गया। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, थीम है वूमेन वूमेन साइंटिस्ट एट द forefront women scientists at the forefront of the fight against COVID-19. women scientists at the forefront यानी कि सामने at the of the fight against COVID-19 ਦੇ against fight ਦੇ women scientist ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ। इंटरनेशनल डे ऑफ वूमेन एंड गर्ल्स इन साइंसिस। ठीक है जी, इस तो इलावा गर्ल चाइल्ड डे हुणे आप ऑबजर्व किया 24 जनवरी नूं, ये भी याद रखांगे, काफ़ी इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड रिलेटेड याद रखांगे, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बनाए गए सी। एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के किन्हां नूं बनाया गया सी, कमेंट बॉक्स दे विच दसना है। ठीक है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बनाए गए सी एक दिन के लिए। इस तो इलावा बाकी दिन अगर आप डिस्कस किए हुए ने, दोबारा डिस्कस नहीं करांगे, नाम दसना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान? दो इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस करांगे अज के दिन आप। एक पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, इस बुक के राइटर ने KN भंडारी द्वारा बुक लिखी गई है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। इस तो इलावा जुम्पा लहीरी द्वारा भी एक बुक लिखी गई है वेयर अबाउट्स, ये भी बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। जुम्पा लहीरी वेयर अबाउट्स और पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान KN भंडारी। ठीक है, दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। इस तो इलावा बाकी 3 ऑप्शंस ने जिहड़े इन्हां रिलेटेड आप बुक्स डिस्कस कीतियां हुई ने। फॉर एग्जाम्पल रेणुका सिंह द्वारा बुक लिखी गई सी दलाई लामा के कोट्स के उत्ते, दलाई लामा के कोट्स नूं एडिट और कंपाइल किया गया सी। बुक का नाम सी बुक ऑफ एनकरेजमेंट, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। पवन सी लाल की गल करते हैं, इन्हां द्वारा बुक लिखी गई सी यस मैन द स्टोरी ऑफ राणा कपूर, पवन सी लाल द्वारा। हामिद अंसारी इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन्हां द्वारा बुक लिखी गई सी बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन टॉप्ड द लिस्ट ऑफ नॉन गेमिंग एप्लीकेशंस ग्लोबली इन जनवरी 2021 अकॉर्डिंग टू सेंसर टावर। सब तो पहले डाटा किसने जारी किया है? डाटा जारी किया गया सेंसर टावर द्वारा। ठीक है, कि केड़ी एप्लीकेशन नॉन गेमिंग एप्लीकेशन के विचों सब तो ज़्यादा इंस्टॉल की गई है, तो यह इंस्टॉल की गई है टैलीग्राम। पहले नंबर पर टैलीग्राम रही है। सोनू याद होएगा आप डिस्कस किया कि व्हाट्सएप द्वारा सर्विस पॉलिसीज़ चेंज की गई सी, जिस करके व्हाट्सएप लोगों ने इंस्टॉल करना रोक दिता सीगा और रिड्यूस कर दिता सी। इस तो इलावा टैलीग्राम नूं काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल किया गया सी। ठीक है, दूसरा कारण जिहड़ी आर्मीज़ ने डिफरेंट कंट्रीज़ दी आर्मीज़ ने ये सोशल मीडिया एप्लीकेशनस नूं बैन कर रही ने, जिस करके व्हाट्सएप की मार्केटिंग के उत्ते सब तो ज़्यादा फर्क आया सीगा और व्हाट्सएप इस दे विच 5वें नंबर पर चली गई। इस इंडैक्स दे विच 5वें नंबर पर व्हाट्सएप है, पहले नंबर पर टैलीग्राम है और सैकेंड नंबर पर टिकटॉक है। टिकटॉक सैकेंड नंबर पर है। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच एप्लीकेशन मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ कंटेंट ऑन फार्मर प्रोटेस्ट। बेसिकली इत्थे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने, दोनों क्वेश्चन इस तरीके नाल बनाया कि दोनों न्यूज़ कवर होन। इस क्वेश्चन दे विच की है कि बेसिकली पूरी स्टोरी डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट जिहड़े
ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ, ਕੂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੂ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਕੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬੋਮਬੀਨੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ CEO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਰਾਮਨਿਆ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਯੰਕ। 2 ਪਰਸਨਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਕਟ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, IT 69A ਕਲੌਜ਼ 3, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 69A ਕਲੌਜ਼ 3, ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਡ ਫॉर 93rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ऑस्कर। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 93rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਸਕਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 3 ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੀਕੱਟੂ, ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਔਰ ਨਟਖਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੀਕੱਟੂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀਕੱਟੂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੀਕੱਟੂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਲੀਕੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਤਾਮਿਲ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀਜ਼ੋ ਜੋਸ ਪੈਲੀਸਰੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਲੀਜ਼ੋ ਜੋਸ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 93rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਵੀ ਐਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਬਿੱਟੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਵ ਦੂਬੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਔਸਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਔਸਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਟੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਮਾਟੀ ਮੂਵੀ ਨੇ। ਅਨਦਰ ਰਾਊਂਡ 50th ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 51st ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਮੂਵੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੂਵੀ। ਓਪਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਅਨਦਰ ਰਾਊਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੂਵੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਅ ਸਪਾਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੀਕੌਕ ਅਵਾਰਡ। ਇਸੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੌਕ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੌਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਮੂਵੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਾफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और डायरेक्टली इत्थों क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस दे
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के हैड बनाए गए ने आनंद शाह। आनंद शाह कौन बनाए गए ने? आनंद शाह इस दे हैड बनाए गए ने। इस तो इलावा अगर आप ऑप्शंस की गल करते हैं, ऑप्शंस पहले डिस्कस कर लें। शशिधर जगदीशन HDFC के MD ने। दिनेश कुमार खारा SBI के चेयरपर्सन ने, चेयरमैन ने। GC मुर्मू कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया GC मुर्मू। और संदीप बख्शी ICICI के MD ने। ICICI बैंक है जो, इस दे MD ने संदीप बख्शी। और आनंद शाह नूं अपॉइंट किया गया हैड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड दे। ठीक है, पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है, स्टडी कर सकते हो। इस तो इलावा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा ही, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा ही गारंटेड इनकम फॉर टुमारो, गारंटेड इनकम फॉर टुमारो इसकी शुरुआत भी की गई है। शॉर्ट फॉर्म के इसनूं गिफ्ट किया गया है, गारंटिंग इनकम फॉर टुमारो टू अचीव लॉन्ग टर्म फाइनैंशियल गोल्स। लॉन्ग टर्म फाइनैंशियल गोल्स नूं अचीव करने के लिए गिफ्ट इनिशिएटिव की शुरुआत किन्ना द्वारा की गई है? तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन एलन बॉर्डर मेडल फॉर द थर्ड टाइम इन हिज कैरियर। बेसिकली डायरैक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एलन बॉर्डर मेडल किस फील्ड के नाल जुड़िया होया, तो स्पोर्ट्स के नाल जुड़िया होया है, और स्पोर्ट्स के विचों भी क्रिकेट के नाल जुड़िया होया है। ठीक है, तो यह दिता गया स्टीव स्मिथ नूं। बेसिकली एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड के विचों अवार्ड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स ने जिहड़े उन्हां दे विचों एक इंपोर्टेंट अवार्ड है एलन बॉर्डर मेडल, जो कि स्टीव स्मिथ नूं दिता गया तीसरी बार। इन्होंने अपने कैरियर दे विच तीसरी बार यह अवार्ड जिते। ठीक है, इसी दे नाल एक होर इंपोर्टेंट अगर गल करते हैं मैन कैटेगरी दे विच एलन बॉर्डर मेडल, वूमेन कैटेगरी दे विच अवार्ड है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड है जिहड़ा, यह किन्हां नूं दिता गया? तो यह दिता गया बेथ मूने, BETH बेथ मूने नूं बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिता गया वूमेन क्रिकेट दे लई, याद रखांगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड्स ने ये काफ़ी इंपोर्टेंट ने, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तो इलावा विराट कोहली ने ICC का अवार्ड दिता सी टीम ऑफ द डिकेड। अजिंक्य रहाणे मुलाग मेडल, यह इंपोर्टेंट रहेगा मुलाग मेडल, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिता गया है और फर्स्ट टाइम भी इंडियन पर्सन नूं ही दिता गया। ठीक है, इसी तरीके नाल ICC मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिते गए हैं। ठीक है, वह किन्हां नूं दिता गया, वो इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा यह भी पहली बार दिते गए हैं, इस करके ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे और क्वेश्चन पूछे जाएगा। जनवरी 2021 एरन फिंच क्रिकेटर ने और जो रूटविक इंपोर्टेंट क्रिकेटर ने। ठीक है, जो रूट बेसिकली रिसेंटली न्यूज़ दे विच भी सीगे, आपां डिस्कस किया सी 200 टेस्ट मतलब 100th टेस्ट मैच दे विच डबल सेंचुरी करने वाले 100th टेस्ट मैच दे विच डबल सेंचुरी करने वाले फर्स्ट प्लेयर बने ने जो रूट, और इन्हां नूं भी जनवरी 2021 दे लई ICC अवार्ड दे विच नॉमिनेट किया गया सी। कित्थे दे प्लेयर ने? इंग्लैंड दे प्लेयर ने। नेक्स्ट है, which of the following organization has acquired 5% stake of the Indian Energy Exchange? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक इंडियन फर्म है, एक्सचेंज फर्म गवर्नमेंट फर्म है, जिसका हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच है। 2008 दे विच यह बनाई गई सी। ठीक है, इसका 5% स्टेक किसने खरीद लिया है? तो गेल ने खरीद लिया। फर्स्ट ऑप्शन गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने की किया है 5% स्टेक इसका खरीद लिया। ठीक है, इस तो इलावा
बाकी ऑप्शनस रिलेटेड न्यूज़ ने वह भी डिस्कस कर लेने, इंपॉर्टेंट रहेंगे। गेल ने की किया, जित खरीद लिया 5% स्टेक। इसी दे नाल अदानी ग्रुप है जो, और टोरेंट गैस ग्रुप है, इसने भी 5% स्टेक खरीदिया सी लास्ट मंथ। इन्होंने 5% स्टेक लास्ट मंथ खरीदिया सी, और हुण गेल ने भी इस दे विच 5% स्टेक खरीद लिया। NPCI नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एपिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस दे नाल मिल के की लॉन्च किया है NPCI पे ऑथ चैलेंज। NPCI पे ऑथ चैलेंज एक हैकेथॉन की शुरुआत की है, ताकि UPI ट्रांजैक्शनस ने जिहड़ियां इन्हां नूं बायोमैट्रिक्स दे नाल कनैक्ट किया जा सके। ठीक है, UPI ट्रांजैक्शनस नूं बायोमैट्रिक्स दे नाल परफॉर्म किया जा सके। हैकेथॉन लॉन्च की है, यानी कि कंपीटीशन है। कंपीटीशन दे विच विनर होएगा तो विनर नूं जिहड़ी प्राइज़ मनी है वो $20,000 की प्राइज़ मनी, $20,000 की प्राइज़ मनी भी अनाउंस की गई है इस दे विच। ठीक है जी। NPCI नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 दे विच यह भी बनाई गई सी। इस तो इलावा टिफैक की एक थिंक टैंक है। टिफैक एक थिंक टैंक है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी का। जिस तरीके नाल अपन नीति आयोग डिस्कस करते होंगे, नीति आयोग एक थिंक टैंक है, उसी तरीके नाल टिफैक एक थिंक टैंक है जिसकी फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असैसमेंट काउंसिल। टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असैसमेंट काउंसिल इसने सक्षम जॉब पोर्टल की शुरुआत की है MSME दे लई। MSME दे लई सक्षम जॉब पोर्टल की शुरुआत टिफैक ने की है। RBI द्वारा फाइनैंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया गया। फाइनैंशियल लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया गया RBI द्वारा 8 तो लैके 12 फरवरी तक। इस साल की जो थीम रही है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मर इंस्टीट्यूशनस। तुहानूं याद होएगा लास्ट ईयर जिहड़ी थीम सी उसकी MSME सी। लास्ट ईयर RBI दे फाइनैंशियल लिटरेसी वीक की थीम सी MSME। ठीक है, इस साल थीम है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशनस, और इसनूं 2016 तो शुरुआत की गई सी, इसनूं ऑब्जर्व लगातार किया जाता है। नेक्स्ट है A marigold variety named dash has been developed by Indian Institute of Horticulture Research। बेसिकली ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इस करके रही क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च न्यूज़ दे विच है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कित्थे है? बेंगलुरु दे विच है। तुहानूं याद होएगा 2 दिन पहले आपां डिस्कस किया सी, इत्थे फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया जाए, किहड़ा? हॉर्टिकल्चर फैसटीवल, हॉर्टिकल्चर फेयर कह दिए या हॉर्टिकल्चर फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बेंगलुरु दे विच, किन्ना द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा। ठीक है, हुण इन्हां द्वारा ही एक मैरीगोल्ड एक फ्लावर है। ठीक है, जिस तरीके नाल रोज़ हो गया उसी तरीके नाल मैरीगोल्ड एक फ्लावर है जिसनूं आपां कहने आ गेंदे का फूल। तो गेंदे के फूल की एक नवी वैरायटी लभी गई है जिसका नाम है आर्का शुभ। ठीक है, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रहेगा आर्का शुभ की है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक फ्लावर है, एक ट्री है, एक प्लांट है, एक एनीमल स्पीसीज है, तो यह की है? एक मैरीगोल्ड फ्लावर की वैरायटी है। ठीक है, इसी तरीके नाल एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमिलर, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल ब्रोकेसिया नाना। Which of the following country has claimed to discover world smallest reptile Broccasia nana? Broccasia nana वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रेप्टाइल कहा गया है, और केड़ी कंट्री ने लभ्या? माडागास्कर कंट्री द्वारा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रेप्टाइल लभ्या गया जिसका नाम है ब्रोकेसिया नाना। ठीक है जी। इस तो इलावा कंट्रीज़ ने, तो कंट्रीज़ की कैपिटल करंसीज इंपोर्टेंट बननगियां, डिस्कस करते हैं। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है, करंसी रुपया चलती है। फ्रांस कैपिटल पेरिस, करंसी यूरो। मलेशिया कैपिटल कोलालमपुर है, करंसी रिंगेट चलती है।
मडागास्कर कैपिटल एंटानारीवो करेंसी एरियारी चलती है। और लिथुआनिया कैपिटल विलनियस करेंसी लितास चलती, करेंसी इत्थे लितास चलती। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट रहेगा वर्ल्ड द स्मॉलेस्ट रेप्टाइल ब्रोकेसिया नाना। विच अरब कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स मार्स मिशन कॉल्ड होप। सोनू याद होएगा अगर आप गल करते हैं जुलाई की, लास्ट ईयर जुलाई की गल करते हैं तो जुलाई दे विच मिशन लॉन्च किया गया सी होप प्रोब मिशन। कई बार आप डिस्कस किया सी कि 2020 दे विच 3 कंट्रीज़ ने मार्स मिशन लॉन्च किए ने, जिन्हां दे विचों USA सी, UAE सीगा और तीसरा चाइना सी। ठीक है, तो UAE द्वारा, अपना आंसर है UAE द्वारा मार्स मिशन लॉन्च किया गया सी। कैपिटल करेंसी लिखी हुई ने, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। बेसिकली ये न्यूज़ दे विच क्यों है, न्यूज़ दे विच इस करके है क्योंकि इसने सक्सैसफुली मार्स दे ऑर्बिट दे विच एंट्री लई है। ठीक है, इन्होंने की कहा सी कि जुलाई दे विच असीं लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने लॉन्च किया और टारगेट दस्या गया सी कि फैबररी 2021 दे विच ये, क्योंकि ऑर्बिटल मिशन है, यानी कि ऑर्बिटल यानी कि जो मार्स प्लैनेट है इसके आले दुआले चक्कर कट्टेगा। ठीक है, तो यह इसके ऑर्बिट दे विच सक्सैसफुली एंटर हो चुका है और चक्कर कट्टन के लिए रेडी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा डायरैक्टली क्वेश्चन, होप मिशन कदों लॉन्च किया गया, जुलाई 2020 दे विच, और कित्थों लॉन्च किया गया सी, तो UAE ने लॉन्च किया सी यह जापान तो, जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया सी UAE का होप मिशन। ठीक है, इसी तरीके नाल मार्स मिशन की, अगर USA के मार्स मिशन की गल करते हैं, प्रिजर्वेंस तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस किया सी मार्स मिशन प्रिजर्वेंस, जिस दे विच होर भी कई क्वेश्चन बने सीगे। फॉर एग्जाम्पल बॉब बालाराम का नाम इंपोर्टेंट रहा सी, बॉब बालाराम द्वारा एक हैलीकॉप्टर बनाया गया सी इंजेन्यूटी, जिसका नाम रखा गया सी, इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस तो इलावा इंडिया के मार्स मिशन की गल करते हैं तो मोम मिशन हर एक ने सुनिया होएगा, मिशन मंगल मूवी भी आई सी, इस दे उत्ते इंपोर्टेंट रहेगी। कैपिटल करंसीज की गल करते हैं, सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद है, करंसी रियाल चलती है। UAE कैपिटल आबू धाबी, करंसी दिरहम चलती है। कतर कैपिटल दोहा, करंसी रियाल चलती है। ओमान कैपिटल मस्कट, करंसी रियाल है। और सीरिया कैपिटल डेमस्कस, करंसी पाउंड चलती है। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम केव कित्थे लोकेटेड है, ऑडिटोरियम केव कित्थे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। बेसिकली ऑडिटोरियम केव MP दे विच लोकेटेड है। स्टैटिक दे विच सिमिलर तरीके का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटोरियम केव, या फिर इत्थों ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली भोपाल दे विच है, MP दे विच भी भोपाल दे विच है। डिटेल डिस्कस करते हैं, बाकी स्टेट्स रिलेटेड न्यूज़ ने वो भी डिस्कस करते हैं। तो ऑडिटोरियम केव जो कि भीमबेटका रॉक शेल्टर का पार्ट है, भीमबेटका रॉक शेल्टर का पार्ट है भोपाल दे विच। ठीक है, इत्थे रिसर्चर्स द्वारा फॉसिल लभ्या गया वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनीमल का, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनीमल दे फॉसिल लभे गए ने, जो कि कहे जा रहे हैं कि 550 मिलियन ईयर पुराने, 550 मिलियन ईयर पुराने है। और ये भी कहा जा रहा है कि इन्हों तो डायनासोर्स के बारे भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, आपने लिए इन्होंने चीज़ों के विचों कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, डायरैक्टली क्वेश्चन बनेगा ऑडिटोरियम केव कित्थे है या फिर भीमबेटका रॉक शेल्टर कित्थे है। ठीक है, याद रखांगे MP दे विच, MP दे भी भोपाल दे विच। तेलंगाना ऑनरेरी कंसलटेट ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की ऑनरेरी कंसलटेट कित्थे ऑर्गेनाइज की गई, हैदराबाद दे विच ऑर्गेनाइज की गई, ओपन की गई। ठीक है, बेसिकली कहांगे एक सेंटर ओपन किया गया जिथे दोनों कंट्रीज़ के जोड़े डिप्लोमैट्स होंगे उत्थे बह के मीटिंग्स कराया करनगे। नूर सुल्तान है, कैपिटल है, करेंसी तेंगे चलती है। उड़ीसा, यह न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ है और एक कहांगे कि रेवोल्यूशनरी न्यूज़ है। स्वामीनाथन कमेटी बारे अगर तुहानूं सुनिया होए कि स्वामीनाथन कमेटी 1966-67 की गल है,
ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੋਪ ਨੂੰ MSP ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ MSP ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ CASP, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। CACP ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ CASP ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟਲਸ ਐਂਡ ਥੀਮੈਟਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 40th INCA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ INCA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ। ਕਰਨਾਟਕਾ, ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟੀ ਕਾਊ ਸਲੋਟਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਟੀ ਕਾਊ ਸਲੋਟਰ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਐਂਟੀ ਕਾਊ ਸਲੋਟਰ ਬਿੱਲ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕਾਊ ਕੈਬਨਿਟ MP। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਊ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸਮ ਦੇ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। $300 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ ਬੈਂਗਲੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।